Hello everyone, this is Dheeraj Kaushal, PGT Commerce from KV number 2 Jalandhar. In this video, I am going to teach you accounting treatment of subscriptions. After going through this topic, you will be able to develop the understanding of the concept of subscriptions and skill of its treatment in income and expenditure account and balance sheet of a not-for-profit organization. Not-for-profit organizations are formed not to earn profit but to render service to its members and to the public. They would also like to know whether their current incomes are sufficient to meet their current expenses or not. For this purpose, they prepare an income and expenditure account and a balance sheet, which is prepared at the end of the accounting year. Let us start the steps to prepare the financial statements of not-for-profit organization. The opening balance of cash in hand and bank balance appearing in the receipts and payment account will be shown on the asset side of opening balance sheet. Similarly, closing balance of cash and bank will be shown in the closing balance sheet. However, the credit balance of bank will be shown on liabilities side of balance sheet as bank overdraft. Now all items of receipt and payment account on the debit side should be divided into two parts, namely capital receipts and revenue receipts. Let's discuss the capital receipts. Capital receipts include receipts of non-recurring nature like life membership fees, endowment fund, tournament fund, specific donations, legacy, etc. All these capital receipts are shown on the liability side of the balance sheet, keeping in mind that expenses related to these funds are deducted from the concerned fund and income related to the concerned fund is added to it. Next is the revenue receipts. All other remaining items appearing on the debit side of receipt and payment account are of revenue nature. They are of recurring nature. They include subscription, general donation, entrance fees, interest received, sale of old newspaper, rent received, etc. So all these debit items are shown on the credit side of income and expenditure account, but after making the necessary adjustments for outstanding, accrued, unearned income, etc. Now coming to the main topic of discussion, that is the subscriptions. If any person wants to join any NPO, then he or she needs to make the payment of a periodic amount. That periodic amount is called the subscription, also known as the membership fees. So subscription is a membership fee paid by the member on annual basis. This is the main source of income of such organizations. Subscription paid by the members is shown as a receipt in the receipt and payment account and as an income in the income and expenditure account. It may be noted that receipt and payment account shows the total amount of subscription. जितना भी आपको total amount subscription का मिला है वो receipt and payment account में दिखाया जाता है, actually received during the year, while the amount shown in the income and expenditure account is confined to the figure related to the current period only, irrespective of the fact whether it has been received or not, because income and expenditure account follows the accrual basis. तो income expenditure account accrual basis के ऊपर बनता है, इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन रिलेट करेगी करंट ईयर से, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर को शो करता है. So broadly speaking, subscription received has the following 4 adjustments and you need to understand all these 4 adjustments very carefully. Let's start discussing these. Number 1, subscription outstanding at the end of the year. This is the subscription which has become due but not been received so far.
सो फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस इट इज़ टू बी एडेड, इसे हम ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Secondly, this will be shown on the asset side of the balance sheet. करंट ईयर की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम एसेट साइड पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को. वाई? क्योंकि आपका एक एसेट जनरेट हो चुका है विच इज़ योर एक्रूड इनकम, तो इसीलिए ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा. Next is the subscription outstanding at the beginning of the year. This refers to the outstanding subscription of the last year. तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो भी लास्ट ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमें करंट ईयर में रिसीव हो जाएगी. अगर आपको वो अमाउंट जो आपका लास्ट ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव होता है तो वो करंट ईयर की इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपका रिलेट कौन से ईयर से करता है, प्रीवियस ईयर से. इसीलिए इट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सेकेंडली, इसे हम कहाँ शो करते हैं, इसे शो किया जाता है एसेट साइड पे बैलेंस शीट की. लेकिन कौन सी बैलेंस शीट होगी ये, लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट. थर्ड इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर. इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम आपकी जो है वो जनरेट नहीं हुई, सब्सक्रिप्शन मिल गई कैश में, लेकिन वो रिलेट कौन से ईयर से करती है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है. इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड. तो इसे हमें डिडक्ट करना है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन में से, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा. सो इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. कौन सी वाली बैलेंस शीट होगी ये, आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट. फोर्थ पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग. The advance subscription money received during last year will be income of the current year. Subscription advance थी last year में और ये पैसा आपको last year मिला, लेकिन वो किस year की income है, current year की income है. तो हमें इसे क्या करना है, it will be added to subscription received on the credit side of income and expenditure account. और दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ आएगा ये, लास्ट ईयर हमारे लिए ये लाइबिलिटी थी, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम कैसे बिगिन करते हैं. वी स्टार्ट विद द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. Two things will be added. What are these two things? Number one, subscription outstanding at the end will be added and subscription received in advance at the beginning will be added, and two things will be subtracted. These are number one, subscription outstanding at the beginning, so this will be subtracted, and subscription received in advance at the end of the year, this will also be subtracted. So after doing all these calculation you will get your final amount which will be written in the main amount column, and it will give you the amount of subscription to be shown in income and expenditure account. So let's see how all these items will be written in the balance sheet. On the liabilities side, you will write advance subscription at the end of the year. On the asset side, you will write outstanding subscription at the end of the year. Now these things will be more clear to you when we'll discuss the practical problem. So let's start with the practical problems. First question is, as per receipt and payment account for the year ended on March 31st, 2017, the subscription received were rupees 2,50,000. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसका अमाउंट दिया है 2,50,000. एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रखी है. इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ascertain the amount of income from subscription for the year 2016 and 17. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और कौन से ईयर के लिए,
2016-17 के लिए एंड शो हाउ रेलिवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स को दिखाना है। अब इन 4 पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। ये जो आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, इन्हें हम अंडरस्टैंड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, तो ये हमारी क्या है, दिस इज अवर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है माइनस। सेकेंड इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज़ 35,000। तो ये क्या है हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम क्या करते हैं, प्लस। थर्ड इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को क्या किया जाता है, प्लस, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेट करता है। फोर्थ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज़ 30,000। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड को हम माइनस करते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चीज़ लिखनी है, हमें लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज़ रुपीज़ 2,50,000। हमें 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है विच इज़ 35,000, इसे हमने ऐड किया। सेकेंड चीज़ जो हमें ऐड करनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग विच इज़ 25,000, इसे भी हमने ऐड किया। तो इन सब को ऐड करने के बाद हमारा टोटल आया 3,10,000 रुपीज़। अब 2 चीज़ें हमें लेस करनी है, वो क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग विच इज़ 50,000। तो जो चीज़ें हमें माइनस करनी है उन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और एक और चीज़ जो हमें माइनस करनी है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज़ 30,000। तो इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जो चीज़ें हमने माइनस करनी है वो टोटल 80,000 है। 3,10,000 में से हमने 80,000 माइनस किया, सो द अमाउंट इज 2,30,000. So this is our income from subscription for the year 2016 and 17. Alternatively, income received from subscription can be calculated by preparing the subscription account. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, जो चीज़ें हमने अभी अभी ऐड की थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कहाँ पे लिखनी है, क्रेडिट साइड पे, और जो चीज़ें हमने सब्ट्रैक्ट की थी वो हमें कहाँ पे लिखनी है, डेबिट साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, the balance brought down of advance subscription and this is 25,000. Secondly, जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई थी ड्यूरिंग द ईयर विच इज़ 2,50,000, इसे भी हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। और इसके अलावा आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है 35,000, वो बन गई बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसे भी हमने लिखा। इन सबको लिखने के बाद अब हम डेबिट साइड पे चलते हैं और डेबिट साइड पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, तो वो कितना है हमारा 50,000, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसे हमने लिखा। इसके अलावा हम अपना कैलकुलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, ये निकल कर आएगा हमारा मेन आंसर, ये हम लास्ट में निकालेंगे। और उससे पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस कैरी डाउन एडवांस सब्सक्रिप्शन का विच इज़ 30,000। अब हम टोटल कर लेते हैं इन सभी का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल 80,000 बनता है और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसका टोटल है 3,10,000। तो ये टोटल हम दोनों तरफ लिख देंगे 3,10,000। अब 3,10,000 में से हमने जो हमारा डेबिट का टोटल था 80,000, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा मेन आंसर आ गया 2,30,000। तो ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को। अब हम रेलेवेंट आइटम्स जो हैं वो दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने क्या शो करना है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें आप देखिए एसेट साइड पे हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर, तो वो कितनी थी हमारी 50,000।
ऐसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर कितनी थी हमारी 25,000, तो इसको हमने शो किया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2015 जो कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो थी हमारी वो 35,000 थी, इसे एसेट साइड पे लिखा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो थी हमारी वो 30,000 थी, वो हमने लाइबिलिटीज साइड पे लिखी। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 आर गिवन बिलो। यहाँ पे आप देखेंगे रिसिप्ट साइड पे आपको सब्सक्रिप्शन 3 डिफरेंट ईयर्स का गिवन है फॉर 2016, 2017 एंड 2018। सो द टोटल इज 30,250। तो जब भी आपको अलग अलग ईयर वाइज आपको सब्सक्रिप्शन दिया होगा तो आपने यहाँ पे जो आपका सबसे पहले वाला ईयर है उसे क्या मान के आप चलेंगे, दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर। सेंटर वाला ईयर आपका होता है करंट ईयर, और लास्ट वाला ईयर आपका होता है नेक्स्ट ईयर। तो हमें कौन से साल की सब्सक्रिप्शन को कंसिडर करना है, सेंटर, दैट इज़ द करंट ईयर। अब कैसे करेंगे, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 230 हैं, और एनुअल मेंबरशिप फीस जो है वो 125 रुपीज़ है। सो वेन एवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन in this particular manner. How we calculate? You'll simply multiply the total number of members with the rate of membership fees. Like in this case, it is rupees 125. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का आया दैट इज़ 28,750। तो हमें करंट ईयर में टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था, हमें रिसीव होना चाहिए था 28,750। लेट्स चेक कि क्या हमें इतना ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो 2017 में अगर हम रिसिप्ट साइड पे देखें तो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है सिर्फ 26,750, जबकि हमारा ड्यू सब्सक्रिप्शन कितना है, हमारा ड्यू सब्सक्रिप्शन है 28,750। तो इसमें से हमारा जो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है वो हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हमने रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अपना सब्ट्रैक्ट किया 26,750, तो 2,000 रुपीज़ का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या आया, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। और ये कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन April 1, 2016 रुपीज़ 2,750। दिस इज लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर हमें कितनी सब्सक्रिप्शन नहीं मिली थी, 2,750। तो ये आउटस्टैंडिंग थी लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन। अब हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग होगी वो करंट ईयर में हमें रिसीव हो चुकी होगी। तो देखते हैं क्या पूरी रिसीव हो चुकी है। अब हम 2016 के अगर अमाउंट को चेक करें तो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट मिला, सिर्फ 2,500 रुपीज़, जबकि हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर का, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो था वो था 2,750, जबकि हमें रिसीव कितना हुआ, तो रिसीव्ड है 2,500। तो इसका मतलब कि 250 रुपीज़ जो हैं ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसे भी कहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये जाएगा बैलेंस शीट में, कौन सी वाली बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और एक और ईयर यहाँ पे रहता है 2018, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन दिख रही है 1,000 रुपीज़ की। तो ये 1,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन हमें 2018 वाली 2017 में ही मिल गई। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन सभी को हम अपने मेन आंसर में कैसे दिखाएंगे। So this is our income and expenditure account. We'll start by writing by subscriptions. तो हमें यहाँ पे कौन सी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है, जो हमें सब्सक्रिप्शन हमें टोटल ड्यू
है वो नहीं लिखनी, जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो लिखनी है। तो एक्चुअल रिसीव्ड हमारी कितनी थी वो हम देख लेते हैं। एक्चुअल रिसीव्ड हमारी थी 26,750। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 26,750। और जो आपकी ड्यू अमाउंट बनती है वो कितनी थी, वो थी आपकी 28,750। तो इसको हमने मेन कॉलम पे लिख लिया। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और दोनों को कंपेयर करके हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपीज़ का। तो ये डिफरेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, इसके अलावा आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जो हमारी ओपनिंग है उसमें आप शो करेंगे कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी लास्ट ईयर की वो कितनी है। तो लास्ट ईयर की हमारी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं। लास्ट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 2,750। तो इसको हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे 2,750। लास्ट ईयर हमें कोई भी एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं मिली थी, तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं करना, यहाँ पे डैश डाल देंगे। करंट ईयर की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हमारी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज़ 2,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने देखा था कि हमारी 2018 की हमें मिल चुकी थी विच इज़ 1,000 रुपीज़। तो इसको हमने बैलेंस शीट में शो किया। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and the additional information, compute the amount of income from subscriptions and show as how they would appear in the income and expenditure account for the year ending March 31st, 2015 and the balance sheet. So receipt and payment account is given to us for the year ending 31st March 2015। यहाँ पे भी आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 डिफरेंट ईयर्स की नज़र आ रही है, 2014 की, 15 की और 16 की। तो 2014 वाली ये प्रीवियस ईयर है, 15 वाली करंट ईयर, 16 वाली नेक्स्ट ईयर। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 8,500 की है। तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली जो सब्सक्रिप्शन है इसे हम कहाँ दिखाते हैं, ये जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी वहाँ एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। आगे टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31st, 2015। अब यहाँ देखिए वर्ड लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2015 की 18,500, हो सकता है इसमें कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर की अभी भी नहीं मिली तो उसका बैलेंस भी इसमें इंक्लूडेड हो सकता है। चेक कैसे करेंगे इस चीज़ को हम, इसे चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जैसे इस केस में 8,500, क्या वो पूरी रिसीव हो चुकी है अभी हमें या नहीं हुई है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 8,500 में से हमें सिर्फ कितना पैसा मिला, यहाँ देखिए 2014 में सिर्फ हमें 7,000 रुपीज़ मिले हैं। इसका मतलब कि 1,500 अभी भी क्या है हमारे आउटस्टैंडिंग हैं। तो इन्हें हमें क्या लेकर चलना है कि ये पैसे जो 1,500 के हैं वो टोटल सब्सक्रिप्शन में एडेड हैं। तो 18,500 में से आप जो लास्ट ईयर के 1,500 इसमें एडेड हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 17,000 हमारा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एंड दिस रिलेट्स टू द करंट ईयर। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,500 नहीं है बल्कि सिर्फ कितनी है, 17,000, क्योंकि इसमें आपके 1,500 किस ईयर के शामिल थे, लास्ट ईयर के। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 31st, 2014। तो ये क्या है हमारी, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है। तो ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग होती है इसे हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, और दूसरा इसको आपने क्या करना होता है, इसे हम ऐड करते हैं हमारे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में।
तो एक बार फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि कैसे था। इस क्वेश्चन में 2016 के भी आप अगर ईयर पे नज़र डालें तो 5,000 रुपये हमें 2016 के भी रिसीव हो गए हैं। तो ये हमारी बन जाएगी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? इसको हम लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे। तो अब हम बनाते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, और हमारा सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ था विच वॉज 30,000 रुपीज़। तो ये हमने लिख लिया। इसमें हमें क्या ऐड करना है? इसमें हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था करंट ईयर से रिलेटेड? दैट इज 17,000। एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे और वो क्या है? वो है हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो एट द बिगिनिंग का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो हमारा 4,000 था। इसे हमने ऐड कर लिया। तो ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो है 51,000 का। अब चलते हैं कि हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट जो होगी हमारी, जो लास्ट ईयर वाली हम बैलेंस शीट जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें हमें दिखाना है कि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। तो हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि एसेट साइड पे आएगा। तो लास्ट ईयर हमें कितनी सब्सक्रिप्शन नहीं मिली थी वो आप देखिए यहाँ पे। हमें लास्ट ईयर 8,500 जो रुपीज़ हैं वो नहीं मिले थे। तो उसको हम शो करेंगे यहाँ पर। और लास्ट ईयर की जो एडवांस सब्सक्रिप्शन थी वो हम लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था वो? 4,000 रुपीज़। तो ऐसे हमने इसको शो किया। अब हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन अपनी जो आउटस्टैंडिंग है वो हम कैसे लिखेंगे? हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को लिखेंगे ईयर वाइज। कौन कौन सा? 2013-14 का भी हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला था 1,500 रुपीज़ का, और 2014-15 जो कि करंट ईयर है उसका भी हमें पैसा कुछ नहीं मिला है विच इज़ 17,000। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लस किया और आउटर कॉलम पे 18,500 लिखा। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पे हम जाएंगे और लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन ये हमें कहाँ से पता चली? जो आपको ईयर वाइज दिया था क्वेश्चन में। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2016 की 5,000 रुपीज़ थी। तो इसे हम लेकर जाएंगे अपनी लाइबिलिटी साइड पे, और लाइबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे कि हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज़ ₹5,000। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। Now let's have a quick revision. What is subscription? It is the main source of income of not-for-profit organization. It will be appearing on the debit side of receipt and payment account. Out of it, subscription belonging to the current year will be posted to the credit side of income and expenditure account. Point number 1, subscription outstanding at the end of the current year, it will be added to the amount of subscription on the credit side of income and expenditure account and will also be shown on the asset side of closing balance sheet. Secondly, subscription outstanding at the beginning of the current year, it will be deducted from the amount of subscription on the credit side of income and expenditure account and will also be shown on the asset side of opening balance sheet. Third, subscription received in advance at the beginning of the current year. This amount was received in the last year as an advance for the current year. It will be added in the amount of subscription on the credit side of income and expenditure account and will also be shown on the liability side of the opening
balance sheet. And at last, the fourth point, subscription received in advance at the end of the current year. It is an income relating to the next year. It will be deducted from the amount of subscription on the credit side of income and expenditure account and will also be shown on the liability side of the closing balance sheet. Thank you so much.